زلزلہ رک جاتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے تو صدیق اکبر کو مانو۔ یہ خان اور یہ پٹھان تمہارے آئیڈیل نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تمہیں عزت و وقار نہیں دے سکتے، یہ تمہیں سرخ رو نہیں کر سکتے، یہ تمہاری عزت کو آگے نہیں بڑھا سکتے، یہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ آج بچہ پیدا ہو گیا، امام صاحب کان میں اذان دے دیے، مسلمان ہو گئے۔ جوانی کی عمر کو پہنچے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مسلمان ہو گئے۔ جوانی اور جوش ماری تو امام صاحب نے کلمہ پڑھا کے قبول کر دیا، شادی ہو گئی۔ بڑھاپے کے عمر کو پہنچے، کسی طریقے سے ٹھٹورتے ٹھٹورتے تھوڑی بہت داڑھی رکھ کر کے نماز پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے۔ اتنی آسانی کے ساتھ اسلام نہیں پھیلا ہے۔ اسلام میں رہنا ہے تو تھوڑی سی قانون اور قاعدے کو برداشت کرنا ہوگا، اور یہ قانون تمہارے نقصان کے لیے نہیں ہے، یہ قانون تمہیں سرخ رو کرے گا، یہ قانون تمہیں اسلام کے ساتھ ساتھ سماج میں عزت دلائے گا، تمہاری وقار کو بڑھائے گا۔ جب غیر مسلم تمہارے اس قانون کو دیکھیں گے، تمہارے اس لباس کو، تمہارے اس کردار کو دیکھیں گے، جو کردار صدیق اکبر نے تم کو دیا ہے، وہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کتنا اچھا عدل و انصاف ہے، یہ کتنا بہترین مذہب ہے کہ اس مذہب میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جاتی۔ ہم نے آج نماز پڑھ لی تو ہمیں نمازی کہا گیا، ہم نے آج کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان کہا گیا، پیسہ آ گئے حج کے لیے چلے گئے تو حاجی کہلائے، زکوٰۃ دے دیا تو زکاتی کہلائے، روزہ ٹھنڈی اور اے سی میں بٹ کر رکھ لیا تو روزے دار کہلائے۔ اتنی آسانی کے ساتھ اس وقت اسلام نہیں پھیلا تھا۔ داستان اسلام سناتا ہوں، سنتے چلو، اپنے کلیجے کو تھام کر سننا۔ جب اسلام میں کوئی آتا تھا 14 صدی پہلے، جب حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کوئی بیعت ہوتا تھا، اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، اسے کھانا اور پانی کوئی نہیں بیچتا تھا۔ صوبہ ابی طالب میں 3 سال مسلمانوں کے لیے کیسے گزرے، سنتے چلے جاؤ۔ حتی الامکان کے مسلمان درخت کے پتے کھا کر کے، درخت کے چھالوں کو چھیل کر کھا کر زندہ رہتے۔ جب کوئی ہواری بیچنے کے لیے آتا تو اسے پکڑ کر مکے کے باہر نکال دیا جاتا کہ صوبہ ابی طالب اور ابی طالب کے گھاٹی تک کسی کو پہنچنے نہ دیا جائے۔ کافر یہ سوچتے تھے کہ یہ جو نیا مذہب اور دین آیا ہے، یہ اسی گھاٹی کے اندر دم توڑ دے۔ لیکن جس قوم کو دنیا میں سر بلند ہونا تھا، جس اسلام کو سر چڑھ کر بولنا تھا، جس کی کتاب کے اوپر کوئی نہیں انگلی اٹھا سکتا تھا، جس قوم کو سرخ رو ہونا تھا، تو پھر اسے کون روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ صوبہ ابی طالب کا وہ زمانہ، مسلمان بڑی پریشانی کے ساتھ، سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کی بیوی سب سے پہلے ایمان لاتی ہے، ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضور کے سچے اور پکے دوست حضرت صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد ابھی حضرت علی نونہال کے عمر میں ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں حضور آپ کے نام پہ علی کٹنے کو تیار ہے۔ حضرت علی ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی، حضرت بلال حبشی، وہ تکلیفوں کو سہتا ہوا بلال آگے چلتا گیا، حضور کا دامن نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال ایمان لاتے ہیں۔ اب ایسے کرتے کرتے ایمان لانے والوں کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ 38 لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، حضور سے کلمہ پڑھ کر بیعت ہو گئے۔ 29ویں کی باری آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، تو ابو جہل نے دیکھا کہ آقا اکیلے گزر رہے ہیں، مسلمانوں کا پیغمبر اکیلا راستہ چل رہا ہے۔ ابو جہل شرارتی کرنے کی سوچتا ہے اور نوکیلا پتھر اٹھا کر میرے محبوب دو عالم کے طرف مارتا ہے اور بار بار مارتا رہتا ہے۔ اس جسمانے مبارک سے، حضور کے جسم سے مبارک خون بہنے لگتے ہیں۔ حضور پلٹ کر اسے کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ حضور پر ظلم و جبر کرتا رہتا ہے، میرے آقا کے بدن سے خون جھرتے رہتے ہیں۔ آقا برداشت کر لیتے، کچھ نہیں کہتے، واپس مکے کی طرف بڑھے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، غلاف کے سامنے میں سر رکھ کر کے رو رہے ہیں۔ ادھر مکے کے کافر بڑے ہلہ کر رہے ہیں، ابو جہل کو لے کر کے سارے لوگ مزے کر رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر پر ابو جہل نے پتھر برسائے۔
शायर उसके नाम का कसीदा पढ़ रहा है। इतने में हुजूर का चचा हज़रत अमीर हमजा शिकार से वापस आ रहे थे। बड़ी खुशी से चल रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनके भतीजे के साथ ऐसा सलूक किया गया है। अगर उन्हें मालूम होता तो वो कभी इतरा कर नहीं चलते। हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमजा शिकार से वापस आ रहे थे तो दो औरतों को बात करते हुए सुना कि आज मुसलमानों के पैगंबर को अबू जहल ने बहुत मारा है, पत्थर बरसाया है, खून निकाल दिया है। हज़रत अमीर हमजा हुजूर के चचा ने जब ये बात सुनी, कहा तुम क्या कहते हो? कहा हाँ, तुम्हारे भतीजे को खूब मारा गया है। वो खामोश खड़ा रहा, कुछ जवाबी हमला ना किया, लेकिन अबू जहल उन्हें मारता रहा। जब ये बात हुजूर के चचे को मालूम हुआ, अमीर हमजा ने तमाम शिकारों को छोड़ा है और अपने तीर से कमान को लिया है, हाथ में लेकर जाते हैं और जाकर के अबू जहल के सर पे जोर से मारते हैं। अबू जहल का सर फट गया। जैसे ही अबू जहल को मारा है, उसके हवारी, उसके चाहने वाले उठकर खड़े हो गए। और अबू जहल ने जब पलट कर देखा है कि अमीर हमजा मुझे मार रहा है, तो अबू जहल बड़ा काई शख्स था, बड़ा समझदार शख्स था। वो समझ गया कि अगर मैं इसके साथ लड़ना चाहता हूँ तो ये अमीर हमजा है, अकेला हम सब का कलेजा फाड़ सकता है, फिर कुरैश साथ में इनके मिल जाएंगे तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। उसने कहा मुझसे गलती हो गई। अबू जहल अपनी गलती को तस्लीम कर लेता है। तस्लीम कर लेने के बाद हुजूर के चचा अपने भतीजे को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। खोजते खोजते क्या देखते हैं कि मक्के के गली के अंदर खाना काबा के सामने में हुजूर सर को नीचे करके रो रहे हैं। हुजूर सर को नीचे करके रो रहे हैं, फरमा रही हैं या अल्लाह, यहाँ पर कोई मेरा दर्दी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, अपने भी बेगाने हैं। तूने इस कौम के सामने में मुझे पैगंबर बना करके भेजा है, जो कौम मुझे हमेशा मारती रहती है। आका दो आलम रो रहे हैं अपने रब के सामने में। सर झुका करके पीछे से अमीर हमजा पहुँचे। क्या कहा? या इब्ने अखी, ऐ मेरे भतीजे, ऐ मेरे भाई के बेटे। जब अमीर हमजा की आवाज़ को हुजूर ने सुना है, कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, सर को उठाओ। मैंने अबू जहल को मार कर उसका सर फोड़ दिया है, तुम सर को उठाओ। हुजूर सर को नहीं उठाते। हुजूर सर को नहीं उठाते। दोबारा कहते हैं या इब्ने अखी, मैंने तेरा बदला ले लिया है, मैंने अबू जहल को मारा है। तीसरा मर्तबा कहना था, हुजूर सर को उठाते हैं। उठाने के बाद कहते हैं भतीजा, मैंने तेरा बदला ले लिया है, मैंने अबू जहल को मारा है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे कोई खुशी नहीं हुई चचा। अबू जहल को मारना ये तो आसान बात नहीं था। हज़रत अमीर हमजा सोचने लगते हैं कि मैंने इतने बड़े सूरमा से तेरे लिए टकराया, मैं इतने बड़े सूरमा के साथ जंग करके आया, फिर भी तू खुश नहीं हुआ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जुमले सुनो और किस्मत पे कुर्बान जाऊं अमीर हमजा के। उन्होंने कहा फिर तू कैसे खुश होता है? तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि चचा तुम मेरे चचा हो, मैं तुम्हें जहन्नम की आग में नहीं देख सकता। तुम अगर रब का दिया हुआ कलमा पढ़ लेते हो तो तुम्हारा भतीजा खुश हो जाएगा। उस दिन उनकी किस्मत बेदार थी। हुजूर के उस आँखों को देखना था, उस मोहब्बत भरे समुंदरी आँखों को देखा है। उस आँखों में अमीर हमजा डूबते चले गए, दिल में सुकून पड़ता चला गया, कुफ्र धुलता चला गया, बुत परस्ती हटती चली गई। अमीर हमजा मुसलमान हो गए। अमीर हमजा का मुसलमान होना था। हुजूर उठ करके खड़े होते हैं और खाना काबा के गिलाफ को पकड़ करके रोते हैं, मालिक आज एक शेर तूने इस्लाम को दिया है, दूसरा दे दे, या तो अबू जहल दे दे या फिर उमर फारूक को दे दे। मालिक इन दोनों में से किसी एक को दे दे। इसके बाद धीरे धीरे इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। वो लोग हैरान और परेशान थे कि जिस मजहब को हम रोकना चाहते हैं वो इतनी तेज़ी के साथ आगे कैसे बढ़ रहा है। लोगों ने अबू जहल को गालियां दी कि तुमको क्या ज़रूरत थी मोहम्मद को मारने की, देखो उसका चचा आज उसके साथ हो गया है, वो भी मुसलमान हो गया है, अब हम क्या करेंगे। अब हज़रत उमर फारूक खत्ताब का बेटा अपने घर में बैठे बैठे सोच रहा है कि इस्लाम तो आगे बढ़ता चला जा रहा है,
अगर इसी तरीके से इस्लाम आगे बढ़ता रहा तो हमारी तारीख मिट जाएगी, बाप दादाओं का दिया हुआ वो बुत परस्ती वाला दीन ख़त्म हो जाएगा। खत्ताब का बेटा 18 साल उम्र का जवान, कड़ियल जवान अपने घर के अंदर पेचो ताप खा रहा है कि कैसे करके इस्लाम को रोका जाए। गज़ब व गुस्से में आंख लाल है, सोचने लगता है कि बानी इस्लाम का चिराग ही बुझा दिया जाए, पैगंबर इस्लाम को ही कत्ल कर दिया जाए। अब वो हाथ में तलवार लेता है, कहता ये काम कोई और नहीं कर सकता उमर के अलावा। अब दोपहर की तड़पती धूप में उमर हाथ में तलवार लेकर निकले हैं। मक्के का वो धूप, अरबिस्तान और उस रेगिस्तान का वो धूप, जिस धूप में दोपहर में हर शख्स दीवार से सट करके चलता था, उस धूप में हज़रत उमर अपने हाथ में तलवार लेकर के गैज़ व गज़ब में मस्जिद नबी के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो रास्ते में किसी सहाबी से मुलाकात हुई, उन्होंने भी चुपके पहले से ईमान ला लिया था। जब उमर को देखा है, पुकारते हैं उमर इतने गुस्से में, आंखों में नशा लिए किधर जा रहे हो? कहा आज बानी इस्लाम का चिराग बुझाने जा रहा हूँ, आज उस दीन को ख़त्म करने जा रहा हूँ। गैज़ व गज़ब में तड़प उठे हैं। तो उसने कहा कि तुम बानी इस्लाम को कत्ल करने जा रहे हो, पहले अपने घर का जायज़ा ले लो, तुम्हारे बहन और बहनोई ने उनका दामन थाम कर गुलाम हो गए हैं, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। कहा ये कैसी बात कहते हो? उन्होंने वो पलटे हैं, अपने इरादे को बदला है। कहा पहले मेरा घर तो संभाल लूँ, फिर बाद में देखा जाएगा। अपने बहन के घर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से मारा, अंदर से कलाम मजीद की तिलावत की आवाज़ आने लगी। उमर गुस्से में तिलमिला उठे, दरवाज़ा पीटने लगे। बहन ने सोचा इतनी ज़ोर से उमर ही पीट रहा होगा, जल्दी से उठे। मियाँ बीबी ने कलाम मजीद को छुपा दिया है, कलाम मजीद को छुपा कर रख दिया। दरवाज़ा खोला, कहा क्या पढ़ रहे थे? कहा कुछ भी तो नहीं, बात कर रहे थे। कहा क्या पढ़ रहे थे, सच बताओ। जब उन्होंने नहीं बताया तो हज़रत उमर मारना और पीटना शुरू कर दिया है। मारते मारते उमर की बहन का खून बदन से जुदा कर देते हैं, सर को फाड़ देते हैं। मारते रहते थकते नहीं। तो गैज़ व गज़ब में हज़रत उमर की बहन आती है, कहती है सुन उमर, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मैंने जिसका कलमा पढ़ा है तो मुझे कत्ल भी कर देगा तो उसका कलमा नहीं छोड़ूंगा। हज़रत उमर थर्रा गए। कहा अरब में एक औरत को इतनी जज्बात और इतना शऊर किसने दे दिया? जिस समाज में औरत उंगली उठाकर मुंह उठाकर बात नहीं कर सकती, उस समाज में एक औरत का इस तरीके से गज़बनाक होना, कुछ तो होगा इस दीन में। हज़रत उमर का कलेजा धीरे धीरे नरम हो रहा है। कहा क्या पढ़ रहे थे? लाओ। कहा तुम नापाक हो, तुम्हें नहीं दिया जाएगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मुझे वो कलाम मजीद दे दो, मुझे वो तुम क्या पढ़ रहे थे मुझे दे दो, मुझे वो अता कर दो। उमर की बहन कहती है कि तुम्हें नहीं दिया जाएगा, ये पाक लोगों को दिया जाता है, तुम नापाक हो। कहा मुझे कैसे मिलेगा? कहा जाओ पहले गुस्ल कर लो। हज़रत उमर गुस्ल कर रहा है, ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर पाक हो रहा है, गुस्ल कर रहा है। वो पत्थर पे लिखा हुआ कुरान, वो खजूरों के पत्तों पर लिखा हुआ कुरान इधर से बहन निकाल करके लाती है। हज़रत उमर गुस्ल करके पढ़ रहे हैं, ताहा व यासीन, हुजूर के नाम पे उतरा हुआ कलाम मजीद हज़रत उमर पढ़ रहे हैं। पढ़ना था, पढ़ते चले गए, आँखों का नशा उतरता चला गया, दिल ठंडा पड़ता चला गया। उस गुस्से में पानी, इस्लाम का पानी पड़ता चला गया। कहा जिस दर के तुम गुलाम हुए हो, उमर की उम्र बर्बाद होने से पहले उसका भी मुझे गुलाम बना दो, उस दर में मुझे गुलामी हासिल करवा दो। कहा चलो उस तरफ चलो। अब सारे लोग एक जगह में जमा हो करके छुप करके इस्लाम की बातें करते थे। अब क्या देखते हैं कि उमर अपनी बहन के साथ उधर आ रहा है, हुजूर भी उस घर में मौजूद हैं। लोगों ने कहा कि उमर उसी तरह तलवार धरे हाथ में मुसलमानों के जानिब आ रहा है। हज़रत अमीर हमजा कहते हैं अगर अच्छा इरादा हुआ तो ठीक, अगर बुरा इरादा हुआ तो उसी के तलवार से उसी का गर्दन काटूंगा, आने दो। अब हज़रत उमर जैसे ही दरवाजे से अंदर घुसते हैं, दो सहाबी आगे बढ़े, हाथों
ہاتھوں کو تھام لیا. حضور نے کہا ہاتھ چھوڑ دو, عمر کو چھوڑ دو. حضور اپنے جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے, حضرت عمر کے کالر کو بائیں ہاتھ سے تھاما ہے اور کلیجے پہ سینے پہ داہنے ہاتھ کو رکھا ہے. کہا اسلم عمر, عمر اسلام لے آؤ. کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. حضرت عمر کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, حضور پکار کر کہتے ہیں نعرہ تکبیر, اور تمام مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر. اور اس اللہ اکبر کی صدا اتنی بلند ہوئی کہ مکہ کی گلیاں کانپ اٹھی. لوگ سمجھ گئے کہ عمر اسلام لا چکا ہے.